हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 5 एंड 6। इन क्वेश्चंस को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी कंपैरेटिवली लॉन्ग क्वेश्चंस। सेक्शन ए में 11 क्वेश्चंस का कलेक्शन है और सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस कलेक्शन, for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Coefficient of x square 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो quadratic equation होगी। Discriminant b square minus 4ac is greater than 0 gives, तो ये आपने स्टडी किया होगा, लर्न किया होगा। इस चैप्टर की अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही कंसाइज मैथमेटिक्स सेलिना का फुल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन सेट को करने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करके हम रूट्स की नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स रूट विल बी रियल एंड अनइक्वल, और अगर ये इक्वल टू 0 होगा देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इफ इट इज लेस देन 0 देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल। B is the correct option. Next question, if x is equal to 2 is the root of this equation, then the value of k, अब देखिए if x is equal to 2 is given equation का root है, then it will satisfy this equation. k is equal to minus 1 by 4. Option A is the correct option. Question number 3, the quadratic equation whose solution set is minus 2 and 3. दोनों रूट्स हमें गिवन है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x plus 2 multiply by x minus 3. If x is equal to minus 2 is the root of given equation means x plus 2 will be the factor of this equation. Now multiply these two factors. X square minus x minus 6 is equal to 0. This is the required quadratic equation. Option B is the correct option. Question number 4, the value of m for which this equation has real and equal roots. Condition for the real and equal roots is the value of discriminant is 0. Now put the value of ABC. Compare this with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. The value of a is 1, coefficient of x square, and the value of b is 2m minus 1, coefficient of x, and the value of c is m plus 5, constant term. Put these values in discriminant. Now solve this quadratic equation for m square minus 3m minus 4 is equal to 0. सबसे पहले हम 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस 3 है। नेचुरली 4 and 1 we have minus 3 means minus 4 plus 1. These are the two factors of this equation. अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वाव वीडियोस करके मैंने इस मेथड को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, जो आपको एमसीक्यूज में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज 4 and minus 1. देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 4 and minus 1. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, question number 5, the solution set of this equation 3x square minus 8x minus 3.
9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 8 हो, सिंपली 9 and 1 and our requirement is -8 means this will be -1 and this will be +1. Now coefficient of x square is 3. Our first factor is x minus 9 upon 3 means x minus 3 and second factor is x plus 1 by 3 means first root is 3 and second root is minus 1 by 3. 3 and minus 1 by 3. A is the correct option. We have to find the solution set of this equation where x belongs to integer I. तो अब देखिए इन दोनों रूट्स में से 3 belongs to integer, 1 by 3 does not belongs to integer means x is equal to 3 is the correct option. x is equal to 3 is the right answer means option B is the correct option. अगर ये कंडीशन इसमें मेंशन नहीं होती then option A will be the correct option. 3 and minus 1 by 3. इसी क्वेश्चन में अगर हमें मेंशन होता x belongs to Q रेशनल नंबर तो भी ये दोनों रूट्स हमारे इंक्लूड होते, लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है x belongs to I मींस आंसर में केवल इंटीजर्स को हमें इंक्लूड करना है, देन x is equal to 3 is the only root. Question number 6. The two conjugative positive odd integers, the sum of whose square is 130. हमें दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके सम का स्क्वायर 130 है. तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं. Suppose first integer is x, then next positive odd integer will be x plus 2, 1, 3, 5. देखिए 2 का डिफरेंस होता है और इनके स्क्वायर्स का सम हमें गिवन है 130 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस x plus 2 होल स्क्वायर इज 130. चलिए सॉल्व करते हैं. 63 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, 9 and 7 and our requirement is plus 2 means this will be plus and this will be minus. x plus 9 x minus 7. इस शॉर्ट ट्रिक को आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. फर्स्ट रूट इज 7 एंड सेकेंड इज -9. -9 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर means first positive odd integer is 7 and next is 9. We have to take two conjugative positive integer 7 and 9. Option A is the correct option. Question number 7. The solution set of this equation where x belongs to n is, if 2x is equal to 0 then x is equal to 0 and if 2x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3 by 2. और कंडीशन है x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो देखिए दोनों में से एक कोई भी रूट नेचुरल नंबर नहीं है मींस फॉर दिस कंडीशन इसका कोई भी सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है. देन द आंसर विल बी 5 एम्प्टी सेट. Next, 8th question. In a group of children, each child gives a gift to every other child. If the number of gifts is 132, then find the number of children are. Let the number of children are x. अब देखिए जो फर्स्ट चाइल्ड है वो अपने अलावा और सबको गिफ्ट देगा मीन्स जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे उससे उनका नंबर होगा x माइनस 1. इसी तरीके से सेकेंड वाला चाइल्ड भी x माइनस 1 चिल्ड्रन को गिफ्ट देगा मीन्स हर बच्चा जो है वो x माइनस 1 चाइल्ड को गिफ्ट देगा. तो टोटल गिफ्ट जो होंगे, टोटल चिल्ड्रन है x और एक चाइल्ड जो है वो x माइनस 1 गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मीन्स टोटल गिफ्ट विल बी x multiplied by x minus 1 and according to question total gifts are 132 means x into x minus 1 is equal to 132. This is our quadratic equation and we have to solve this for x. 132 के हमें फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो. इसके भी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में शेयर की है, आप जरूर देखिएगा.
12 and 11 whose difference is 1 and product is 132. We have to find minus 1 means minus 12 plus 11. These are the factors for this means x is equal to 12 and minus 11. Minus 11 number of children में possible नहीं है means x is equal to 12. Number of children are 12. Then the number of children are 12. Option B is the correct option. Question number 9th equation हमें given है has equal root. Equal roots means the value of discriminant will be 0. Value of a is 1 plus m square and b is coefficient of x 2mc and value of c is c square minus a square. Now apply the condition for equal roots. B square minus 4ac is equal to 0. C square is equal to a square 1 plus m square. C square is equal to a square 1 plus m square. Option D is the correct option. Next question, which statement is true? First हमें given है x square plus 5x minus 5 is equal to x minus 3 whole square is a quadratic equation. तो देखिए फर्स्ट साइट में तो हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप देखिए जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 होगा. मीन्स दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और हमें ट्रू स्टेटमेंट को टिक करना है. मीन्स दिस इज नॉट राइट. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. नेक्स्ट ऑप्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 रूट्स. तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. नन ऑफ दीज. तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक इसमें जो है 2 ऑप्शंस करेक्ट हो गए हैं B एंड C. तो या तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, अदरवाइज जो फोर्थ वाला ऑप्शन मेंशन होगा उसको इस तरीके से होना चाहिए बोथ B एंड C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस are 1.390 and 0.359. The roots correct to 2 significant figures are. अब रूट्स हमें गिवन है. फर्स्ट रूट 1.390 एंड सेकेंड रूट 0.359. डेसिमल के 3 प्लेसेस तक गिवन है और हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है. मीन्स 2 ही डिजिट हमारे आंसर में होनी चाहिए, चाहे डेसिमल से पहले हो या बाद में हो. तो देखिए अगर हम इसको 2 डिजिट तक करेंगे तो हमें यहां तक इसको करना है, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो इस 9 ड्यू टू दिस 9 दिस विल बी 1.4. फर्स्ट रूट इज 1.4 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस इतना हमें करना है. तो राउंड ऑफ करने पर हमें मिलेगा 0.36. 1.4 एंड 0.36 मींस A इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि द रूट्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो फर्स्ट रूट होता 1.39 और सेकेंड रूट होता 0.36. लेकिन क्योंकि इसमें मेंशन है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो जो ये फर्स्ट वाला है ये हो जाएगा 1.4. नेक्स्ट सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं. द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर x माइनस 1 x एंड x प्लस 1. द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज. अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड. मीन्स इन तीनों में से x प्लस 1 ये होगा और x और x माइनस 1 में से आप किसी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए. अब एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. मीन्स हाफ इंटू x माइनस 1.
केवल हमें x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आइदर x0 और x माइनस 4 0 मीन्स दो वैल्यूज हमें जो मिली हैं x के लिए, दीज आर 0 एंड 4। 0 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक साइड 0 नहीं हो सकती है, मीन्स x इज इक्वल टू 4, देन एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 into 3, 6 units. In centimeter, then 6 centimeter square. Option C is the correct option. Question: the value of k for which this equation has distinct and real roots. Condition for distinct and real roots is discriminant b square minus 4ac will be greater than 0. Positive होना चाहिए। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज -6 एंड c इज k। चलिए पुट करते हैं। k इज लेस देन 3, ऑप्शन a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ -1 and 3 आर द रूट्स ऑफ x square plus px plus q is equal to 0, then the values of p and q। अब देखिए दोनों हमें रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। दैट विल बी, इफ -1 इज द रूट मीन्स x plus 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली x - 3 भी उसका फैक्टर होगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखिए p के प्लेस पर मिल रहा है हमें -2 और q के प्लेस पर मिल रहा है -3। p इज इक्वल टू -2 एंड q इज इक्वल टू -3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप इसको सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं तो पहले -1 पुट कीजिए इसमें। If -1 is the root of this equation, then this will be satisfy this. तो x के प्लेस पर -1 पुट कर लीजिए, आपको p और q में फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड आप x के प्लेस पर 3 पुट करिए तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी p और q में, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप p और q की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। अब देखिए ऑप्शंस देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें हमें इंटीजर रूट्स तो नहीं मिल रहे हैं, मींस हमें इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -3 एंड c इज -9। देन x is equal to by श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। (4.87 एंड -1.87) और अगर राउंड ऑफ करें देन फर्स्ट रूट इज 4.9 एंड सेकेंड रूट इज -1.9। 4.9 and -1.9, option D is the correct option. Solution of the equation this are। अब देखिए ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 4 है। 3 2s are 6 के फैक्टर्स जिनका सम 503 एंड 2, -5 हमें चाहिए तो दोनों माइनस होंगे, डिवाइडेड बाय 2, x -3/2 is equal to 0, सॉरी x स्क्वायर,
means x square is equal to 3 by 2 and if x square minus 1 is equal to 0 then x square is equal to 1. ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया है. अब देखिए वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x की पूरी तरह. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस वैल्यू ऑफ x नॉट x स्क्वायर. तो अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 by 2 and if x square is equal to 1 this will give x is equal to plus minus 1. अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और इसको रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें then we will get numerator रूट 6 and denominator 2. तो इस फॉर्म में हमें आंसर गिवन है प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 2 एंड प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 2. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करते. 3.62 एंड 1.37 राउंड ऑफ करें तो 3.6 एंड सेकेंड 1.4. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. The sum of two natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2 by 15. Then the number will be. इनमें हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी होती है फिर उसको सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. If let the number is x, sum of two natural number is 8 means second number होगा 8 minus x and the difference of their reciprocal 1 upon x और 1 upon 8 minus x that is equal to 2 by 15. इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनको सम करके 23 मिले. ट्वेंटी एंड 3. x इज इक्वल टू 20 एंड 3. अब देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन थी कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 मीन्स x इज इक्वल टू 20 इज नॉट पॉसिबल. द आंसर इज x इज इक्वल टू 3. तो फर्स्ट नंबर तो 3 है और सेकेंड नंबर हो गया 8 माइनस x मीन्स 5. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. A can do a piece of work in x days, B can do the same work in x plus 16 days. If both working together can do it in 15 days, x will be. तो देखिए इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा. इसमें फर्स्ट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है 1 day वर्क, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए निकालते हैं 1 day वर्क फॉर A एंड 1 day वर्क फॉर B. x डेज में अगर a कंप्लीट कर रहा है मीन्स 1 day वर्क ऑफ a इज 1 अपॉन x और b उसको x प्लस 16 डेज में कवर कर रहा है मीन्स 1 day वर्क ऑफ b इज 1 अपॉन x प्लस 16. अब अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे देन 1 day वर्क ऑफ a एंड b टुगेदर विल बी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 16. One day work is this means
अब देखिए अगर 1 डे वर्क फॉर ए 1/x था, मींस x डेज में वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा था। सिमिलरली अगर a और b दोनों का 1 डे वर्क ये है, तो इसका रेसिप्रोकल हमें देगा नंबर ऑफ डेज इन विच a एंड b बोथ विल कंप्लीट द होल वर्क। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों मिलकर जब साथ काम कर रहे हैं तो वो उस वर्क को 15 डेज में कवर कर रहे हैं, मींस इसको रेसिप्रोकल इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16x अपॉन 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 15। -24 or -10. -10 is not possible. Then the answer is 24. Option D is the correct option. Next question. A car covers a distance of 400 km at a certain speed. Had the speed been 12 km per hour more, then the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed. Let the original speed of car is x. Distance is 400 km, then time taken to cover this distance 400 upon x hours. Second हमें given है condition, if the speed have been 12 km per hour more, means for second case speed will be x plus 12. डिस्टेंस तो सेम है, देन टाइम टेकन सपोज t2, डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 अपॉन x प्लस 12, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टाइम t2 इज 1 hour 40 minutes लेस देन t1. वन आवर 40 मिनट्स, उसको भी हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। t2 400 अपॉन x प्लस 12 माइनस t1 400 अपॉन x इज इक्वल टू -1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सेवेंटी 72 और 40 का डिफरेंस भी नहीं है। 6 से 2 से 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 60 and 48 difference is 12, means required factors are 60 and 48 and our requirement is plus 12. X is equal to -60 is not possible, means x is equal to 48. Original speed of car is 48 km per hour. Option B is the correct option. Next question. A 2-digit number is such that the product of its digit is 6. When 9 is added to this number, the digit interchange their places. चलिए इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फ्रेम करते हैं। Product of digit. Suppose the number is 10x plus y. Digit at unit place is y and digit at tens place is x. Then product of digit means xy is equal to 6. 9 is added to this number. Second condition हमें given है कि अगर इस number में हम 9 ऐड कर रहे हैं, then the digits interchange their places. तो जो नया नंबर न्यू नंबर हमें मिल रहा है
उसमें डिजिट्स का जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स द नंबर विल बी 10y प्लस x। अब देखिए यहां से x की वैल्यू हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू y माइनस 1। करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, y minus 1 into y is equal to 6. Two is not possible. Put the value of y in equation 1, x is equal to 2, means the required number is x की value 2 put करेंगे और y की 3, 23 is the correct option. Rupees 480 is divided equally among x children. If the number of children were 20 more than each, then each would have got rupees 12 less. तो देखिए दो केसेस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट गिवन है 480 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए x चिल्ड्रन में, मीन्स मनी रिसीव्ड बाय वन चिल्ड्रन 480 डिवाइडेड बाय x। सेकेंड केस में हमें गिवन है कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल 20 मोर, मीन्स सेकेंड केस में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जा रहे हैं दैट इज x प्लस 20 और मनी तो वही है 480, मीन्स इन दिस केस मनी इज रिसीव्ड बाय वन चिल्ड्रन विल बी 480 अपॉन x प्लस 20 और क्वेश्चन में गिवन है कि सेकेंड मनी इज 12 लेस देन फर्स्ट मनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 12। x is equal to minus 40 is not possible, means x is equal to 20. Number of children are 20. Option B is the correct option. Now next question, a motorboat whose speed is 9 km in still water goes 12 km downstream. हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एंड कम बैक, जितना जाता है 12 किलोमीटर उतना ही वापस लौटता है इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours। टोटल टाइम हमें गिवन है 3 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x। डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगी बोट, स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 9 और डिस्टेंस हमें गिवन है 12 किलोमीटर। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब वो अप स्ट्रीम वापस लौटेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 9 minus x and time taken will be distance upon time and total time हमें given है 3 hours, means t1 plus t2 is equal to 3. x is equal to plus minus 3. Minus 3 is not possible, means x is equal to 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। A is the correct option. आई होप कि ये MCQs बेस्ड वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के MCQs के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।